हेलो एंड वेलकम टू आई छोरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्लीडन के इंडिया में क्या चार्जेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लीडन आखिर है क्या भला। ग्लीडन एक फ्रेंच ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो खास तौर से महिलाओं के लिए बनी है, इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड। यस, यू हर्ड इट राइट। It was first introduced in France in 2009. Adults of all marital status, whether they are married, separated, divorced, live in relationships, and single, along with people of all sexual orientations, are welcome to join the Glidden community. Glidden is mostly intended for men and women. कोविड-19 पीरियड के दौरान इस एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप ने, जो कि फ्रांस में डेवलप हुआ था, ये अनाउंस किया कि इट हैड क्रॉस 13 लाख सब्सक्राइबर्स इन इंडिया with its subscription rate skyrocketing in just 3 months. eHarmony और मीटिक्स से भिन्न ग्लिडन का बिजनेस मॉडल मंथली सब्सक्रिप्शंस की बजाय क्रेडिट्स पर बेस्ड है। दूसरे यूजर्स से कनेक्ट होने के लिए एक सब्सक्राइबर को क्रेडिट पैक्स बाय करने होते हैं। To engage in an email or text session with another user, members pay a one-time charge of 2-3 credits. Subsequent messages in a thread are unregulated. Credit packs, private calls, and chats do not expire. Members interact with one another through chat or private messaging. Members एक दूसरे को वर्चुअल प्रेजेंट्स देते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं टाइप और प्राइस के अनुसार. The moderation strategy, though, can be rigid. Private images can be stored in a different photo archive or private book, which can only be accessed with the consent of the member who owns the image. यानी कि private images जो है वो आप तभी देख सकते हैं जब जिस इंसान के वो images हैं उसने आपको access दिया हो कि वो आप pictures देख सकें. How many Indians use Glidden? 2020 में ग्लिडन के तहत किए गए एक सर्वे के अनुसार सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय ओवर 246% इन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर कंपेयर टू जून, जुलाई एंड अगस्त. कोविड-19 सीजन के दौरान इट सरपास 13 लाख subscribers in India with subscription rates skyrocketing in a span of 3 months. The age range, according to media sources, is between 34 and 49 years old. In India, a number of people from different professions, including judges, lawyers, doctors and senior executives have entered the community. यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग भी ग्लिडन कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं. According to the service, the network has attracted nearly 3 lakh subscribers in 4 months, with 2.5 lakh of them joining in a span of 2 months. 2019 से इस वेबसाइट और ऐप पर टाइम जो लोगों ने बिताए हुए वो 3 गुना हो गया है. एंड आफ्टर द लॉकडाउन के बाद प्रोहिबिशंस वर रिपील्ड. पीपल स्टिल प्रेफर्ड वर्चुअल डेटिंग और फेस टू फेस मीटिंग्स बिकॉज द डेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस रिमेन्ड हाई. इस पैंडेमिक की वजह से लोग बाहर एक दूसरे से मिलने की बजाय ग्लिडन जैसे डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से बातें करना और एक दूसरे से वर्चुअल डेट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. द ऐप हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन टायर 1 cities with Bangalore, Mumbai and Delhi. With Bangalore on first spot, Mumbai on second spot and Delhi on third spot. Glidden usage stats की बात करें तो Glidden is founded in France, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यूरोपियंस के मुकाबले भारतीय लोग ज़्यादा समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं ग्लिडन ऐप पर. ग्लिडन ने बताया, ग्लिडन की रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस ज़्यादा टाइम चैट में स्पेंड करते हैं यूरोपियंस लोगों से ज़्यादा, एवरेजिंग एट 3.5 hours a day as compared to 3 hours. Couples commitment is at its highest on weekends, although the peak hours, which are 10 p.m. to 12 a.m., are consistent throughout the week. Since the beginning of the lockdown, male members on the site have spent more time, with a rise of over 45% in spending on the app.
द नंबर ऑफ इंडियन वुमेन हु यूज द ऐप इज़ इंक्रीजिंग. भारतीय महिलाएं इस ऐप को धीरे धीरे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. कंसिडरिंग दैट वाइल women made up 25% of Gliden's Indian users the previous year, they now make up 30%. This demonstrates that Gliden is attracting an increasing number of female users every day. The number of users on Gliden has increased dramatically and rapidly since the decriminalization of adultery in India. Gliden had about 1.2 lakh Indian users when they first began connecting in India. यानी कि जब से भारत में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, इस ऐप का इस्तेमाल बढ़ गया है. Gliden had about 1.2 lakh Indian users, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, when they first began contacting in India. In less than a year, the registered users have increased. यानी कि registered users बढ़े हैं एक साल से कम के समय में by more than 37%, demonstrating that people really wanted this kind of community. इसका मतलब लोग इस तरह की community चाहते हैं. यह आश्चर्य वाली बात है कि लोग अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक स्टिग्मा की तरह नहीं देखते, वो इसे बहुत ही हल्के में लेने लगे हैं. हालांकि शायद ये समाज के लिए एक खतरा हो सकता है आगे जाकर, लेकिन फिर भी ऐसे ऐप्स की डिमांड बढ़ना, ऐसे ऐप्स पर रजिस्टर्ड यूजर्स का आना, ये संकेत देता है कि लोगों की सोच में एक बदलाव आया है. अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन मुद्दा है, और वो ये कि ग्लीडन के इंडिया में क्या चार्जेस है. ग्लीडन एक लग्जरी डेटिंग वेबसाइट कम ऐप है मैरिड लोगों के लिए. इज़ गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया एंड नाउ हैज़ ओवर 100,000 सब्सक्राइबर्स. द वेबसाइट इज़ फ्री फॉर फीमेल. ये महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है और ये 20 लोगों की एक टीम के द्वारा रन की जाती है और वो भी महिलाएं हैं. द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स वेरियस सब्सक्रिप्शन बंडल्स फॉर मैन जो कि 700 रुपये से शुरू होते हैं. द टीम एट ग्लीडन बिलीव्स दैट सिंस इट इज़ ओन्ड बाय women should not be required to pay for the services. They want the platform to be appealing to women. Extramarital dating is a common occurrence. When women have been married for a while, they tend to search for excitement, which they can now find online. Surprisingly, men's subscription services are determined by the amount of conversations they partake, rather than the time spent on the app. यानी कि men का जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है वो इस बात पर डिटरमाइन होता है कि कितनी बातें वो करते हैं rather than कितना टाइम वो इस ऐप पर स्पेंड करते हैं. Since the app and website is run by a female team for the female population, it is completely free for women. Men, on the other hand, are evaluated by women, and the fees to access the network could vary from rupees 750 to rupees 9,500. This ensures that women will always come first on Gliden. इससे ये बात तो साबित होती है कि ग्लीडन के लिए महिलाएं सबसे पहले हैं. भारत में जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70% मैन है और 30% विमेन है, जो काफ़ी हाई प्रोपोर्शन में है. और गिवन दैट फैसिलिटीज़ फॉर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स ड्रॉ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मैन बाय चार्जिंग मैन फॉर दिस सर्विस. पुरुषों से चार्ज करने के कारण ये इस तरीके से काम करता है कि स्लैकर्स, बुलीज और हैरेसर्स अगर कोई होगा तो वो इसमें रजिस्टर नहीं करेगा. मतलब कि कोई अगर इसमें रजिस्टर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो पे करेगा, और इस तरीके के बुली, स्लैकर्स और हरासर्स के आने के चांसेस कम हैं इस ऐप पर. As a result, Gliden is a high-quality community occupied only by high-driven individuals. Women will feel better and more at ease because they know that the men they will meet on Gliden are not there to annoy or harass them out of boredom. The app charges men for facilities and allows them to use in-app contact methods such as private messaging, live chats, gifts, photo galleries in exchange for credits. Credit shopping packs for men in India vary from 750 to 9,500. To enter the community, one must fill up a form including personal information such as the number of children, marital status, sexual identity, occupation, salary, smoking status, body measurements, ethnicity, hair color and hair length, eye color, and hobbies and passions.
It is absolutely free for women. However, there is a credit-based obligation-free scheme for men. According to users के अनुसार पुरुषों की पॉकेट के लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है, सिंस मैसेजिंग रिक्वायर्स देम टू हैव क्रेडिट्स विच अगेन कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम ₹1000 to 3000 टू बिगिन विद. इफ़ अ मैन मैसेजेस समवन, अगर कोई पुरुष किसी को मैसेज करता है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्रेडिट्स अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे. अगर चैट विंडो लॉस्ट हो गई है and they responded again a while later, there will be credits deducted despite you being online. According to this user, it would be better to get the lady's contact info as soon as possible to avoid unnecessary charges which cost a considerably large amount of money. इस वेबसाइट का एम शादी जैसी प्रथा के बीच आना नहीं है, लेकिन बल्कि एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल प्लेस प्रोवाइड करना है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तलाश में है. फेक, ऑब्सीन और प्रोवोकेटिव फोटोज एंड टेक्स्ट आर इमीडिएटली रिजेक्टेड. फेक आइडेंटिटीज एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आर विगरसली इन्वेस्टिगेटेड एंड यूजर्स who may not follow the rules and regulations are barred from the network. Many people would still be unhappy with the app in terms of social approval, but attitudes are shifting. Many people feel motivated to follow lifestyles and habitual patterns that encourage them to be happy, even if it means finding someone special using an extramarital app. तो हम कह सकते हैं कि हालांकि ये ऐप सोसाइटी में तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसको समाज में कितना अपनाया जाएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय समाज में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और ग्लिडन जैसा ऐप उस प्रथा के विरुद्ध ही कहा जाएगा. लेकिन समाज बदल रहा है और धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदल रही है. आजकल लोग शादी के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं और ये ऐप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का एक माध्यम साबित हो सकता है. लेकिन हम यही कहेंगे कि आप इस ऐप को सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करे. बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है. थैंक यू सो मच.